Morning, students. We are going to start with the new chapter, and it is of regarding human physiology. And the first chapter in the human physiology that we are going to get concerned with is digestion and absorption. Now, when we talk about digestion and absorption, digestion and absorption. Now, first we need to get accompanied with what are the steps in digestion. The steps in digestion is the first step is known as ingestion. Ingestion means taking in of food from mouth. That is called ingestion. Now, after you take the food inside your mouth, you normally chew it. Chewing. This chewing is also known as mastication. Chewing of food. After chewing, we swallow the food. This swallowing of food is known as deglutition. After swallowing of the food, the digestion process starts. Digestion. After digestion, the absorption process starts. Absorption means whatever the essential nutrient are there, we should be absorbing those essential nutrient, and after absorption, the assimilation of the nutrient takes place. The assimilation of the nutrient takes place, and after assimilation, digestion takes place. Digestion takes place. So these are the steps of digestion normally that you are going to be asked in a question. What are the different steps? They will blank out the space in between and ask what is the steps, what is it is written over there. So these are the 7 steps that you need to remember regarding digestion. Now when we talk about the digestive system, when we talk about the digestive system, it starts with the alimentary canal. An alimentary canal has an anterior opening and a posterior opening. Where the digestive system ends, it is called the posterior opening, that is the anus, and the alimentary canal, the anterior opening, where digestive system starts, that is called the mouth. So first one is the alimentary canal. The alimentary canal is anterior opening is known as mouth. Now then, from the mouth, the food goes to the buccal cavity. The food goes to the buccal cavity. And buccal cavity consists of four things. What is present in the buccal cavity? Teeth, palate, tongue, and salivary gland. These are the 4 things which you will found in the buccal cavity. Then after the buccal cavity, we have got a pharynx. Always remember, pharynx is not an organ. It is a space where food and air mixes. And this pharynx is of 3 types. What are those? These are called the nasopharynx, oropharynx, and laryngopharynx. There are 3 types of the pharynx. From the pharynx, that food will enter into the esophagus. And always remember, I am writing it in order. Esophagus. From the esophagus, it will enter the stomach. It will enter the stomach.
And from the stomach, it will enter the small intestine. And the small intestine is divided into three parts. The first part is known as the duodenum, second part is known as the jejunum, and the last part is known as the ileum. After the small intestine, the food will enter the large intestine. And this large intestine consists of two parts. The first part is known as the cecum, from where the appendix actually is produced, and the second part is known as the colon. So this is the large intestine. From the large intestine, we are actually going inside the posterior end of alimentary canal. The posterior end of the alimentary canal is known as anus. That is known as the anus, from where the egestion takes place. So the digestive system is basically made up of these things. Apart from these things, we also need to study two more things. The glands, the two glands which we need to study, that is the liver. Two glands are also there. And we all know the liver is the largest gland also. We need to study liver and pancreas. So this will constitute the whole digestive system and the steps of the digestive system. Till here, is it clear? Because I now will go inside the diagrammatic view of the digestive system. What I have said over here, I need to tell in diagram. Is it clear? Yeah. Okay, I think I haven't put on the see. Yeah. Now I will go for the diagram of the digestive system, which you need to understand very clearly and carefully. Now, let me first conclude, teach you the basic thing of this diagram.
Now, this part is the external nostrils, right? Or the external nares. It's known as the nostrils, right? Right? Yeah. This is the upper lip. This part is the lower lip. So the space between the upper lip and the lower lip is known as what? Mouth. Space between the upper lip and the lower lip, it is called as mouth. All right. Now see this structure. This is the ceiling of the buccal cavity, the roof of the buccal cavity. And the roof of the buccal cavity consists of the palate. The palate is of two types. The frontal part of the palate is known as the hard palate, and the posterior part is known as the soft palate. You can see one bulged portion over here. This bulged portion is known as the uvula. What it is known as? This is known as the uvula. Sometimes this uvula inflammates and it obstructs the pathway of air through the nasal chamber. This is known as the nasal chamber. It obstructs the pathway of the air through the nasal chamber, and sometimes we see people snorting very highly. Because what happens when this uvula gets inflamed, it creates the obstruction of the downcoming of this air, and it obstructs it in a condition which is known as obstructive sleep apnea. It is known as obstructive sleep apnea. Now the next thing is, around this uvula we have got what? Over here we have got nasopharynx. We have got what? The nasopharynx. This is our tongue, which is present in the floor of the buccal cavity, and this is the teeth. This is the teeth. Now you see, we have got four kinds of teeth: incisors, canine, premolar and molar. So I have drawn four teeth also over here. The first one is called as the incisor. So the space you see over here in front of incisor and in between the mouth, this part is known as vestibule. What is known as? What it is known as? It is known as vestibule. Vestibule is a part which is present in between the incisor and in between the mouth. Is it clear till here? Is it clear? Okay. Now the food will come inside this opening of the esophagus. This opening of the esophagus is known as gullet. And it will go down to the esophagus, the esophageal tube. You see some indentations in this esophagus. These are known as esophageal rugae. And what does this esophageal rugae does? It maintains the peristaltic movement. If we try to understand one very clear thing, when we take in the food, vestibule is the part where it is the part in between your front incisor and this opening of the lips. That is called the vestibule or vestibular apparatus. अपना मुंह में हाथ डाल के देखो, लोअर लिप और अपर लिप और फ्रंट इंसाइसर्स के बीच एक स्पेस होगा, उसको ही बोलते हैं वेस्टिब्यूल. हाथ डाल के देख सकते हो मुंह के अंदर. ओके, सो इट्स कॉल्ड द इसोफेजियल रुगे. एक्चुअली जब फूड अंदर आता है तो स्टेप वाइज आता है, एकदम से धड़ाक करके नीचे तक नहीं आ जाता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है इसोफेजियल. और तुमको पूछेगा इसोफेगस आगे है या ट्रैकिया आगे है? ट्रैकिया के पीछे है इसोफेगस, ट्रैकिया इसके सामने होता है. सो देयर इज अ कंडीशन कि जहां पे ट्रैकिया में एयर जाता है, इसोफेगस में खाना जाता है. कभी कभी क्या होता है, खाना ट्रैकिया के अंदर चला जाता है
तो उसमें हम लोग एक कंडीशन एनकाउंटर करते हैं जिसको बोलते हैं हिकअप, और जोर से छींक मारते हैं और नाक से वो खाना बाहर आ जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये खाना इसोफेगस के अंदर घुस जाता है, इसोफेगस ट्रैकिया के अंदर आ जाता है। ट्रैकिया बेसिकली इज इन फ्रंट ऑफ द इसोफेगस, इसोफेगस इज एट द बैक एंड ऑफ द ट्रैकिया। इसके बाद वाला जो जगह आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है भैया, ये है स्टमक। दिस इज स्टमक। इसका अलग से हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे कि कौन सा क्या पार्ट है। तो खाना कहाँ पे आएगा, स्टमक। लेकिन देखो इसोफेगस से जब खाना स्टमक में आएगा तो यहाँ पे देखो एक स्फिंक्टर है, एक होल है। इस स्फिंक्टर का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। किस रीजन से इसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि देखो स्टमक एक ऑब्लिकली शेप्ड स्ट्रक्चर है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, हम लोग का हार्ट होता है। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ये स्फिंक्टर भी है, वेयर द हार्ट इज लोकेटेड। So that's why this opening is known as cardiac sphincter. और एक ओपनिंग है स्टमक का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट को ये कनेक्ट करता है। ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। उसका फर्स्ट पार्ट का नाम क्या बताया था, डियोडेनम। डियोडेनम में पूरा खाना हजम हो जाना है। डाइजेशन डज नॉट कंटिन्यू आफ्टर डियोडेनम। व्हाटएवर डाइजेशन हैज टू बी कंप्लीटेड, इट हैज टू बी कंप्लीटेड इन द डियोडेनम इटसेल्फ। इसके बाद कोई डाइजेशन ऑफ द फूड नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। क्या होगा, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन कहां से स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट सेकेंड पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं क्या, जेजुनम। और उसका नीचे वाला जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम। तो जेजुनम से हम लोगों का खाना एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये खाना किसके अंदर घुस जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इसका जो कनेक्शन मेंटेन करता है उसको बोलते हैं इलियोसिकल एपार्चर। इलियोसिकल एपार्चर काहे के लिए ऐसा नाम है सर, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं लार्ज इंटेस्टाइन का दो पार्ट है, एक है सीकम और एक कोलन। तो ये पार्ट को बोलते हैं हम लोग सीकम। तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, इन दोनों में जो कनेक्शन किया है, इसीलिए उसको नाम है इलियोसिकल एपार्चर। जैसे ये सीकम में आ जाएगा ये खाना ऊपर की तरफ चलना लगेगा, ये ऊपर, फिर ऐसा साइडवेज, फिर नीचे आएगा थोड़ा और थोड़ा लैटरल वेज, और फिर एनस से इजेशन हो जाएगा, एनस से इजेशन हो जाएगा। लेकिन सर ये जो ऊपर साइड नीचे और लैटरल सेक्शन दिखाए हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का कोलॉन पार्ट है। और कोलॉन 4 किस्म का होता है, असेंडिंग कोलॉन, ये साइडवेज का बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, फिर नीचे वाला जो जाता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन, जो ये साइड में जाता है इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मोइड कोलॉन। फिर आता है ये पार्ट, इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम के बाद एनस, और उसके बाद बाहर से क्या होगा, इजेशन। यहाँ पे 2 ग्लैंड्स किया हूं, ये ग्लैंड का नाम हो जाएगा पैंक्रियास। पैंक्रियास कहाँ पे है ठीक से देख के बताओ तो, ये सैंडविच मॉडल तरह नहीं रख रहा है, सैंडविच की तरह देखो, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन डियोडेनम का बीच में लग रहा है ना, तो इसलिए क्या बोलते हैं, पैंक्रियास कहाँ पे होगा, बिटवीन व्हाट, बिटवीन स्टमक एंड डियोडेनम, सैंडविच मॉडल। ये ग्लैंड का नाम बोला था, दिस इज वन ग्लैंड। और दूसरा ग्लैंड ये बंदा कौन है, ये इसका नाम है लीवर। लीवर 2 हाफ में डिवाइडेड होता है, एक होता है राइट लोब और एक होता है लेफ्ट लोब। फिगर से दिखने में क्लियरली दिख रहा है कि राइट लोब थोड़ा बड़ा है, लेफ्ट लोब थोड़ा छोटा है। और लीवर से डक्ट सिस्टम आके यहाँ पर भी डक्ट सिस्टम होता है, वो जो
आखिर ये अलग सा सेक्शन में पढ़ना पड़ेगा, इसमें करेंगे तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, मतलब एक्यूमुलेटेड हो जाएगा यहाँ पे। तो राइट लोब ऑफ द लीवर इज बिगर देन द लेफ्ट लोब नॉर्मली, अभी ये चीज जान के लो। तो ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है नॉर्मली। तो मुझे बताओ अभी कि कहां से होके कहां पे, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बताओ कहां से होके कहां तक ये खाना आया, एक के बाद एक। एनीवन कैन टेक पार्ट इनटू दिस, anyone can say me or tell me what they have seen over here. Qazi Razia Akbar Shah, I hope that my voice is reaching you, and tell me what you have gone through over here. What have you gone through? नहीं पता? मुझे तो बोला गया था कि तुम लोगों से पूछने से आंसर मिलता है। मुझे तो पता था कि आंसर नहीं मिलता है क्योंकि तुम लोगों को वैसे कुछ पता नहीं है। तो कदम प्रणव, राउत आदित्य, anyone, what I have told you over here? Then ingestion takes place to the mouth. Then Who is this? This is Sushmita is this? Pawar. Okay, yeah, tell me. Then the food it enters into the gullet region, which guards the. रुक जा भाई, रुक जा, एक के बाद एक बताने का। माउथ को कैसे डिफाइन करेगा? It is the mouth is the anterior opening of the alimentary canal. ये एक डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन, it is a space between upper lip and lower lip. Yes, it is the space between the upper lip and lower lip. Then खाना अंदर गया, अभी रुक जा, खाना अंदर गया, लिया ना मुंह में खाना? हाँ. लिया तो? Yes. यस। इसके बाद कौन सा ऑर्गन बकल कैविटी का काम करेगा? खाना मुंह में लेके क्या करता है? बायोलॉजी छोड़, रेगुलर खाना तो खाता है, मुंह में लेके क्या करता है? The food is masticated by using the teeth. हुआ, फिर? Then the food it is directed down towards the esophagus. कौन डायरेक्शन दिखाएगा ये? By the कौन tongue. बाय द टंग। टंग का और कुछ काम होता है? फूड जो, रुक जा भाई, रुक जा ना, हड़बड़ी करने का नहीं है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी है। टंग का और कोई काम होता है? जो खाना को चबाया है उसको क्या बोलते हैं? बोलस, टू मेक अ बोलस। रुक जा, बोलने दे पहले, फिर मैं तुझे स्टार्ट करने के लिए फिर से बोलूंगा। सॉरी सर। बोलस बनाएगा, चबाने के बाद क्या बनेगा? बोलस। बोलस क्या होता है? व्हाट इज बोलस? बोलस होता है जो खाना चबाया है वो क्या डाइजेस्टेड है? नो। नहीं, तो फिर बोल सकते हैं क्या पार्शियली डाइजेस्टेड फूड? यस। और मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल बोल सकते हैं, हाँ या ना? यस। उसके ऊपर मुंह के बकल कैविटी में क्या निकलता है? थूक निकलता है, सलाइवा। यस। तो बोलस में सलाइवा रहेगा? रहेगा। सलाइवा में कोई एंजाइम रहता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? टायलिन या सलाइवरी एमाइलेज, जिसका पीएच होता है 6.8, स्लाइटली एसिडिक। तो बोलस में कुछ पार्शियल डाइजेशन हो सकता है क्या? मैं बोला था ना पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो एंजाइम तो काम कर रहा है बोलस के ऊपर, तो पार्शियली डाइजेशन हुआ ना? जब मैं पूछा था तन्वी पवार को तब चुपचाप रह रहा था। यहाँ पे अभी मैसेज मत करियो, जो आंसर कर रहा है उसको करने दे। हाँ, क्या नाम बताया था तेरा? स्मिता, राइट। तो
तो ये टंग क्या करेगा, ये खाना टंग को पीछे करना पड़ेगा ना खाना को इसके तरफ धकेलने के लिए। Yes. ऐसा है टंग, ये तरफ पीछे करना पड़ेगा ना, हाँ. तभी ना पीछे की तरफ आएगा खाना। तो क्या बोलेगा, हाँ. क्या बोलेगा उसको, ये टंग रोटेट्स बैकवर्ड्स, राइट? Yes. The tongue rotates Yes. backward. Backward to direct the food towards the gullet region of the esophagus, right? Yes. ये टंग क्या फुल्ली बैकवर्ड रोटेट कर जाता है या हाफ रोटेट करता है? Half rotate. काहे के लिए? अपना टंग को पकड़, टंग को पकड़, पकड़ पकड़। Yes sir. एक चीज है, पकड़ ना, पकड़ लिया तो देख उसको पीछे ज्यादा मुड़ नहीं सकता है, एक लिगामेंट अटैच्ड होता है टंग के साथ फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी का, Yes. एक पीछे नहीं रोल कर सकता है ज्यादा। तो वो जो लिगामेंट है उसका नाम क्या है? फ्रेनुला लिंगुई। क्या नाम है उसका? फ्रेनुला Sir, can you लिंगुई। repeat? Frenula lingui, the ligament which is attached to the tongue with the floor of the buccal cavity is known as frenula lingui. Okay. हुआ? Frenula lingui ना? फिर frenula lingui, तो फिर खाना कहाँ पे आएगा? गुलेट में आएगा। Yes. गुलेट से कहाँ पे जाएगा अभी बता? Into the esophagus. इसोफेजियल चेम्बर बोल सकते हैं अभी। Yes. ट्यूब है ना, तो इसोफेजियल चेम्बर बोल सकते हैं, राइट? राइट। तो ये खाना के Yes. एकदम से धड़क करके स्टमक में आ जाएगा, रुक रुक के आएगा? रुक रुक के आएगा। ये रुक रुक के आने वाला प्रक्रिया को कौन करता है? इसोफेगल रुगे। रुगे। रुगे का मतलब क्या है? तेरा ये जो हार्ट पैलेट है ना, उसका भी, रुक जा, तेरा जो हार्ट पैलेट है ऊपर में, उसमें भी है रुगे, उसको बोलते हैं पैलेटाइन रुगे। अपना टंग को, अपना रूफ ऑफ द बकल कैविटी का जो फ्रंट पार्ट है उसमें थोड़ा घुमा के देख, वो स्मूथ सरफेस नहीं दिखेगा, थोड़ा घुमा वहां पे टंग को, ऐसा लगेगा Yes. कुछ ये है, उसको क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रुगे। ठीक है, लेकिन पीछे वाला जो होगा, जो सॉफ्ट पैलेट है, वहां पे पैलेटाइन रुगे नहीं होता है। ठीक है, जो भी हो। तो ये है क्या? इसोफेजियल रुगे। तो रुगे का काम क्या है? खाना को रोक रोक के स्टमक के तरफ धकेलना, राइट? Yes. इस प्रोसेस का नाम क्या है? पेरिस्टाल्सिस। Peristalsis. पेरिस्टाल्सिस। ये Yes. पेरिस्टाल्सिस होके कहाँ पे आएगा? कौन सा ओपनिंग में आएगा? Cardiac sphincter which guards the opening of stomach. सिर्फ ओपनिंग ऑफ द स्टमक को गार्ड कर रहा है? ठीक से देख, ठीक से देख, इसोफेगस को ओपनिंग को भी गार्ड कर रहा है ना? Yes. हाँ. या तो बोल सकता है ना, थोड़ा ऑप्शन में दो ही आएगा। इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द स्टमक, इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस, लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस। तो दोनों ऑप्शन राइट है ना? Yes. तो अभी कार्डियक स्फिंक्टर से कहाँ पे आएगा खाना? Stomach में. स्टमक में। स्टमक से कहाँ पे आएगा खाना? Pyloric sphincter. तो इसको गार्डिंग ऑफ द ओपनिंग विच इज गार्डिंग व्हाट? The opening of duodenum and the lower part of stomach. ये लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक को बोलते हैं पाइलोरस, इसलिए इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। व्हाट माय पॉइंट? Yes sir. ठीक है, तो अभी ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से ये खाना कहाँ पे आएगा? Duodenum में. Duodenum is which part of the stomach? First, second or third part? The first part of small intestine. Small, हाँ, of the small intestine. ये देख के क्या लग रहा है? ये बहुत कॉइल स्ट्रक्चर है या ट्यूब जैसा है? Arc type. ट्यूब जैसा Arc है। type. आर्क टाइप मतलब ट्यूब जैसा है ना? हाँ. बेंट ट्यूब बोल सकते हैं ना? यूट्यूब की तरह Yes. दिख रहा है, देख। Yes. ये डिओडेनम के बाद, डिओडेनम में क्या होता है? डाइजेशन यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यू होगा? नहीं, इसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा. स्टार्ट हो जाएगा। जेजुनम और इलियम में एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा, राइट? Yes. तो ये डिओडेनम के बाद खाना कहाँ पे आएगा? जेजुनम में. जेजुनम में। जेजुनम में खाना का कौन सा चीज एब्जॉर्ब होता है? खाना में वाटर भी है, मिनरल्स भी है। तो मैं अगर तुझे पूछा
ये जेजुनम में कौन सा चीज एब्जॉर्ब होगा, क्या बोलेगा? दो है ना भैया? हाँ, तो बता क्या चीज एब्जॉर्ब हो सकता है जेजुनम में? पानी एब्जॉर्ब होगा। पानी क्या एब्जॉर्ब होगा? वाटर। वाटर। तो फिर बाकी रहा कौन? पानी और मिनरल्स ही होगा। तो हीलियम में क्या हाँ, एब्जॉर्ब होगा? मिनरल्स। मिनरल। हो गया, काम खत्म हुआ, राइट? यस। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद मतलब खाना कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट में, राइट? यस। यस। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे घुसता है कोई एपर्चर के साथ घुसता है, राइट? यस। जो which is attaching the small intestine and the large intestine, right? Yes. Which part of the small intestine is attached with which part of the large intestine? Ileum of small intestine is attached to the cecum of large intestine. तो इसलिए इस अपर्चर का नाम क्या दिया गया है? Ileocecal aperture. क्लियर? Yes, sir. हुआ, खाना सिकम पे आ गया, राइट? अभी Yes. लार्ज इंटेस्टाइन कोई भी डाइजेशन होगा या सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा? Absorption. किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? Water का. वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. है ना? Yes, sir. वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया। अभी बता, ये सिकम से कहाँ पे जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट में जाएगा? Ascending colon में. मतलब कोलॉन में जाएगा ना, सिकम के बाद आफ्टर कोलॉन में जा रहा है। ये जो देखा छोटा सा ये चीज बनाया हूं यहाँ पे, इसका नाम क्या है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। मतलब बहुत छोटा सा है, वर्म लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा वर्म लाइक स्ट्रक्चर। पहले ये फंक्शनल हुआ करता था, सेलुलोज डाइजेशन करता था हम लोगों में, अभी नहीं करता है। इसलिए ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोलते हैं या फिर रूडिमेंटरी ऑर्गन भी बोलते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो क्या करता था पहले? ये कौन सा चीज का डाइजेशन करता था? सेल्यूलोज डाइजेशन। सेलुलोज डाइजेशन करता था। अगर सेलुलोज डाइजेशन करता था तो तुझे अगर मैं पूछूं कि अपेंडिक्स में कौन सा एंजाइम रहता था जो सेलुलोज डाइजेशन करता था? सेलुलेज। क्या है? सेल्यूलेज। सेलुलेज वही सेलुलोज डाइजेशन करेगा ना। तो अभी खाना सिकम से कोलॉन में आएगा। कोलॉन का कौन सा पार्ट में आएगा पहले? असेंडिंग कोलन। फिर ट्रांसवर्स कोलन। फिर डिसेंडिंग कोलन। फिर सिग्मोइड कोलन में आएगा। फिर उसके बाद रेक्टम। फिर एनस। एनस से फिर इजेशन होगा उसका। खत्म। समझ में आया बात क्या हुआ है? यस सर। दो ग्लैंड का बात किया हूँ। दो ग्लैंड कौन कौन सा था? पैंक्रियाज एंड लिवर। इसमें से कौन सा ग्लैंड सबसे बड़ा है? लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है? यस सर। ठीक है। लिवर किस तरफ है रे? राइट या लेफ्ट? राइट में है ना, ये लेफ्ट में है। पैंक्रियास इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, लिवर है राइट में। ये लिवर के रहते हुए ना जो राइट किडनी है थोड़ा नीचे की तरफ है। हाँ, नहीं तो ये ऊपर होता है। ठीक है। यस। पैंक्रियास को कैसे करके डिफाइन कर सकता है? उसका ऑकरेंस का कैसे करके डिफाइन कर सकता है? It is it's sandwiched between the stomach and duodenum. डिओडेनम। लिवर को कैसे करके उसका ऑकरेंस को डिफाइन कर सकता है? The इट इज राइट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। पहला चीज राइट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल एंड below the it is above the right kidney. That's why the right kidney is below. है ना? yes. है ना?
Yes. क्लियर? बाकी बच्चों को अभी पूछ रहा हूँ, क्लियर है कि नहीं जो भी डिस्कशन हुआ है अभी? बाकी बच्चों को पूछ रहा हूँ, जो भी डिस्कशन हुआ है समझ में आया है कि नहीं? यस सर। तो इसके बाद हम लोग आएंगे एक एक बात को लेके और ज्यादा चर्चा करने में। कुछ और चर्चा करना है जो तुम लोग लिख सकते हो। मैं एक चीज बोला था, ये उबुला अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन का नाम क्या बोला था? इन्फ्लेमेशन ऑफ उबुला। क्या बोला था उसके बारे में? उबुलाइटिस। क्या बोला? उबुलाइटिस। क्या बोलते हैं इसको? उबुलाइटिस। अगर ये चीज बढ़ गया तो यहाँ से नेजल चेंबर से ऑक्सीजन आने का जो, या फिर बाहर जाने का, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने का जो प्रक्रिया होगा वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा ना? वो ऑब्स्ट्रक्टेड होगा कि नहीं होगा? यस। होगा। तो उसका क्या कंडीशन बोला था? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ दिस पैसेज ऑफ एयर ड्यू टू उबुलाइटिस। उसको क्या बोला था? स्नॉटिंग करते हैं लोग, नाक सोने के टाइम बहुत खर्राटे भरते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल टर्म में क्या बोलते हैं? स्नॉटिंग। क्या बोलते हैं? स्नॉटिंग। या फिर मेडिकल टर्म में इसको बोलता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। एपनिया का मतलब जब ऑक्सीजन कम आ रहा है और सोने का टाइम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, इसी के वजह से आवाज होता है। ये फूल गया, जैसे ही सांस ले रहा है बंदा या सांस छोड़ रहा है तो ये बहुत जोर से फ्लैपिंग होता है, ऐसा ऐसा करके फ्लैपिंग होता है, तो इसीलिए आवाज निकलता है। क्लियर? समझ में आया? यस। उसके बाद हम लोग एक जगह पे जाएंगे जिसका नाम है दांत। दांत बहुत किस्म का उसका आइडेंटिफिकेशन जगह है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन बहुत तरह से किया गया है। हम लोग दांत को भी वैसे ही क्लासिफिकेशन करेंगे जिस तरह से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, जितना भी तरह उसका क्लासिफिकेशन है। ये क्लियर है? मैं इसको रब कर सकता हूँ अभी? सर। हाँ बोल। सर एक डाउट है सर, जर्जिनम में वाटर का सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है क्या? सब नहीं होता है। अगर सब हो गया तो फिर ये जो क्या बोलते हैं इसको, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं रहेगा। और अगर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो जो पॉटी निकल रहा होगा ना, जो पॉटी, जो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ओके सर। यस सर। मतलब जर्जिनम में थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब होता है और बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में पार्टली वाटर इज एब्जॉर्ब। मैक्सिमम होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन में। इसका कारण है, जब जाऊंगा लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, इसका एक कारण, एक रीजन है। वो रीजन आपको बताना चाहता हूँ, पूछा है बोल दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें सीलिया जैसे प्रोजेक्शन रहता है। तो कोई भी प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसा होगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा। गॉट माय पॉइंट? तो ये जो एब्जॉर्प्शन किस किस्म का प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है या पैसिव प्रोसेस है? देख कितना सारा क्वेश्चन निकल सकता है। एब्जॉर्प्शन इज एक्टिव और पैसिव प्रोसेस। कोई चीज को खींच के ले रहा है, खींचने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए कि नहीं? यस सर। तो फिर ये एक्टिव प्रोसेस होगा या पैसिव प्रोसेस होगा? एक्टिव प्रोसेस। गॉट माय पॉइंट? यस सर। मिनरल सर टोटली एब्जॉर्ब्ड इन इलियम ना? मिनरल सब इलियम में हो जाता है। ओके। क्योंकि मिनरल अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा इलियम में
और अगर वो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, देन देयर विल बी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन योर बॉडी। क्योंकि वो अगर लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो वो फीकल मैटर से बाहर निकल आएगा, विच इज एन अनवांटेड प्रोसेस, इट्स अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज नॉट अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। क्लियर? यस सर, क्लियर, थैंक यू। अभी टीथ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टीथ पहले तो स्ट्रक्चर जो है वो तो बाद में पढ़ेंगे पहले। और जो मैं उवुलाइटिस के बारे में बोला वो लिखा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड उवुलाइटिस, लिखा है सबने? Yes. उवुलाइटिस के बारे में क्या लिखा? व्हाट इज उवुलाइटिस? Inflammation of उवुला। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का मतलब क्या होगा? snorting. Snorting. That is called obstructive sleep apnea. Due to what? Due to uvulitis. Yes. तो टीथ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। टीथ का जो पहला क्लासिफिकेशन हुआ है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स का मतलब अपने जीवन काल में टीथ कितने बार उगेगा, एक बार, दो बार या बार बार। तो ये तीन प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। पहला प्रकार जो होता है ओनली वन सेट, अपना जीवन काल में सिर्फ एक ही बार दांत उगेगा, ओनली वन सेट इन लाइफ टाइम। उसको बोलते हैं हम लोग मोनोफायोडोंट। तो क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोफायोडोंट। ये मोनोफायोडोंट ऑफ टीथ किसमें रहेगा? एग्जाम्पल, वेल्स में रहेगा एंड एंटीटर्स में रहेगा। एंटीटर्स पता है, देखा है? डिस्कवरी चैनल तो कभी देखा ही होगा, डिस्कवरी चैनल तो देखा ही होगा ना। तो उसमें देखना होगा कि टापीर बोल के एक किस्म का एंटीटर होता है, उसको प्रोटोथेरियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोथेरियन। बेसिकली दीज आर कॉल्ड द टापीर्स। ठीक है, इतना लंबा सा स्नाउट होगा, एलिफेंट जैसा, इतना लंबा सा। कहीं पर भी एंट पिट दिखा तो वो स्नाउट उसके अंदर घुसा देगा, और उसके एक प्रीहेंसाइल टंग होता है। इसमें क्या होता है? क्या बोला? हैव प्रीहेंसाइल टंग। प्रीहेंसाइल टंग का मतलब क्या है रे? जो लटक सकता है। जैसे बंदरों का प्रीहेंसाइल टेल है ना, कहीं पे ऐसे जकड़ के वो खुद लटक सकता है, लंबा है। तो प्रीहेंसाइल का मतलब है बहुत लंबा टंग। तो आराम से वो लंबा टंग को वो एंड पिट के अंदर घुसा देगा फट करके, और पूरा उसको सफाचट करके फिर वो टंग को अंदर चला जाता है। प्रीहेंसाइल टंग और एक एनिमल के अंदर देखा है। किसमें देखा है? कैमेलियन। ऐसे करके टंग फट करके बाहर निकलता है और कुछ भी इंसेक्ट पकड़ के अंदर ले लेता है ना। अबे हाँ या ना? Yes. यस सर। हाँ, तो वो उसको बोलते हैं प्रीहेंसाइल। प्रीहेंसाइल वर्ड का मतलब है प्रोलॉन्ग्ड, लंबा। ठीक है, तो अगर ये एक सेट होता है तो कुछ एनिमल्स होगा जिसमें दो सेट होगा, टू सेट इन लाइफ टाइम। लाइफ टाइम में दो बार उसका दांत उगेगा, उसको बोलेंगे डाइफायोडोंट। और मैं इसको स्क्वायर अप कर दूंगा। क्यों स्क्वायर अप करूंगा? क्योंकि ये डाइफायोडोंट टीथ हम लोगों में होता है। एग्जाम्पल, मैन एंड एप्स। ठीक है, ऑलराइट। तो ये टू सेट का नाम क्या है? पहला जो दांत उगता है, फर्स्ट सेट, उसको बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर टेम्पोररी टीथ। ये टोटल नंबर इसका होता है 20। और जो सेकेंड सेट उठता है उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ।
इसका टोटल नंबर हो जाएगा 32। तो कितना दांत बढ़ जाता है हम लोगों का? कितना दांत बढ़ गया? 20 से 32 हो गया। कितना बढ़ा? 12 12 12 टीथ बढ़ा। अपर जॉ और लोअर जॉ मिला के 12 टीथ बढ़ेगा, राइट। थर्ड जो होगा उसको बोलेंगे मेनी सेट्स इन लाइफ टाइम, मतलब दांत गिरेगा उगेगा, गिरेगा उगेगा, मेनी सेट्स इन लाइफ टाइम। तो उस मेनी सेट्स इन लाइफ टाइम को क्या बोलते हैं? पॉलीफायोडोंट। क्या बोलेंगे? पॉलीफायोडोंट। एग्जाम्पल कहां पे होता है ये? फिश एंड एम्फीबिया। इसका दांत गिरता है उगता है, गिरता है उगता है। क्लियर? तो फिलहाल याद रखना, मैन में क्या बोला हूं? एक डायफायोडोंट। याद करना, मैं लास्ट में सिर्फ एक यही चीज पूछूंगा कि टोटल ह्यूमन डेंटिशन को हम लोग कैसे करके डिफाइन कर सकते हैं। फिलहाल अभी दिमाग में क्या रहेगा? डायफायोडोंट, राइट? है ना? यस सर। yes इसके बाद टीथ को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कस्प डिफाइन करेंगे। कस्प क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कस्प दांत का जो हिस्सा ऊपर से दिखता है, ऑन द बेसिस ऑफ कस्प डिफाइन करेंगे। कस्प, कस्प में क्या बोला? व्हाट इज कस्प? द विजिबल पोर्शन ऑफ अपर पार्ट ऑफ टीथ, राइट? विजिबल पोर्शन ऑफ अपर पार्ट ऑफ टीथ। मतलब सर, ये अगर ये दांत हुआ और दांत कौन सा बोन के अंदर रहता है? ये बोन का नाम क्या बोला था, याद है? एल्वियोलर बोन। हाँ, ये अगर एल्वियोलर बोन है, और एल्वियोलर बोन कितना प्रकार का होता है? ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। तो अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में रहता है। तो दांत दोनों जगह पे होगा ना, या सिर्फ लोअर जॉ में ये होता है? यस सर। दोनों जगह पे होगा ना। तो एल्वियोलर बोन दो किस्म का हो सकता है। मैंडिबुलर भी हो सकता है, एज वेल एज मैक्सिलरी भी हो सकता है। अपर एंड लोअर जॉ बोथ, राइट और रॉन्ग? yes है ना? तो ये जो हिस्सा ऊपर से दिख रहा है इसको बोलेंगे कस्प। दिखता है ना कुछ हिस्सा अंदर घुसा रहता है, कुछ हिस्सा बाहर से दिखता है, तो इसको बोलेंगे कस्प। इसके हिसाब से हम लोग 4 प्रकार का दांत बना सकते हैं। क्या क्या? पहला वाला जो है उसको बोलते हैं ब्यूनोडोंट, और इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। क्यों स्क्वायर कर दिया बोल तो? क्योंकि ये ह्यूमंस में होंगे। ये ब्यूनोडोंट टीथ जो होता है वो ब्लंट होता है, इट इज ब्लंट। एग्जाम्पल ह्यूमन। ये ब्लंट टीथ जो होता है वो 2 किस्म का टीथ होता है। एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर। हम लोगों का 4 प्रकार का टीथ है ना, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो जो ब्लंट टीथ है वो है प्रीमोलर और मोलर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ब्यूनोडोंट। एग्जाम्पल होंगे क्या? ह्यूमंस। सेकेंड टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ कस्प, इसको बोलते हैं सिनोडोंट। सिनोडोंट पॉइंटेड एंड शार्प टीथ होगा। ये सबसे ज्यादा अच्छा दिखने में मिलते हैं कार्निवोरस एनिमल में, पॉइंटेड एंड शार्प टीथ। एग्जाम्पल इसमें बोला, कार्निवोर्स में बोला। थर्ड जो है उसको बोलेंगे सेलेनोडोंट।
ये सेलेनोडॉन्ट क्या होगा? सेलेनोडॉन्ट हाफ मून शेप होगा, हाफ मून शेप, दैट इज हाफ मून शेप का एक नाम है क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट शेप। ये दांत मिलेगा ग्रेजिंग एनिमल्स में। ग्रेजिंग एनिमल्स देखा है, आंखों में देखा होगा, हर दिन बाहर घूमता होगा, गाय बछड़ा देखा होगा ना, देखा है कि नहीं देखा है? गाय भी नहीं देखा है? देखा है। हाँ, तो वो ग्रेजिंग एनिमल्स है। और लास्ट टाइप ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ टक्स, उसको बोलते हैं लोफोडॉन्ट। लोफोडॉन्ट, लोफोडॉन्ट का मतलब क्या है? टीथ विथ रिजेस, टीथ विथ रिज। मतलब कैसा होगा टीथ? देखने में थोड़ा ऐसा होगा। व्हाट माय पॉइंट? ऐसा दिखने में होगा टीथ, टीथ विथ रिजेस। क्रिसेंट शेप मतलब ऐसा दिखने में होगा। हाफ मून शेप बोला ना, ऐसा दिखने में होगा, हाफ मून शेप। पॉइंटेड एंड शार्प टीथ, ऐसा होगा दिखने में। गूनोडॉन्ट, ब्लंट एंड टीथ, ऐसा दिखने में होगा। व्हाट माय पॉइंट? तो ये टीथ विथ रिज किसमें दिखता है? एलिफेंट। एग्जाम्पल एलिफेंट। मैं टस्क का बात नहीं करता हूं, नहीं कर रहा हूं, जो लंबा सा टस्क व्हाइट वाला बाहर दिखता है वो नहीं, जिससे वो चबाता है, वो वाला टीथ, वो टीथ विथ रिज, उसको बोलते हैं लोफोडॉन्ट। तो फिलहाल ह्यूमंस में किस किस्म का टीथ दिखा अभी तक? फटाफट बोल। ह्यूमंस में कितने प्रकार? ब्यूनोडॉन्ट एंड डाइफियोडॉन्ट। डाइफायोडॉन्ट, राइट। तो इसके बाद देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विथ एल्वियोलर बोन। एल्वियोलर बोन के साथ एक दांत कैसे अटैच होता है? पार्शियली अटैच होता है, एक साइड में अटैच होता है, टोटली अटैच होता है, कैसे अटैच होता है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो on the basis of attachment, with इसके साथ एल्वियोलर बोन, एल्वियोलर बोन के साथ कैसे अटैच होता है इसका बेसिस पे देखो। एल्वियोलर बोन, क्लास खत्म हो फिर अपना पर्सनल डाउट पूछ लेना, मैं कहीं पे भागा नहीं जा रहा हूँ। और ये जो कंप्लेन किया हूँ ना कि डाउट पूछने से मैं गुस्सा होता हूँ, मैं डाउट हर वक्त क्लियर करता हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये है कि बीच में डाउट मत पूछो, कंप्लीट होने दो, डाउट है पूछना। एल्वियोलर बोन होता है दो जगह पे, एक लोअर जॉ में भी होता है और एक अपर जॉ में भी होता है। लोअर जॉ में जो एल्वियोलर बोन होता है उसको क्या बोलते हैं? मैंडिबुलर बोन, राइट। लोअर जॉ को क्या बोलते हैं? मैंडिबल बोलते हैं ना, आया ना, आया ना। और अपर जॉ को क्या बोलते हैं? मैक्सिला। तो मैक्सिलरी बोन। तो इसके हिसाब से जो टीथ हम लोगों को मिला है, पहला वाला जो टीथ हम लोग पढ़ेंगे वो है एक्रोडोंट। एक्रोडोंट का मतलब क्या है? ये सुपरफिशियल अटैचमेंट है। सुपरफिशियल अटैचमेंट का मतलब क्या है? मतलब जस्ट एल्वियोलर बोन के साथ लगा हुआ है। ये अगर एल्वियोलर बोन हुआ, इफ दिस इज द एल्वियोलर बोन, इसके साथ सिर्फ ये जो टीथ है ना, सिर्फ ऊपर से जस्ट लगा हुआ है, तो मतलब इसका ये अंदर तक घुसा हुआ नहीं। दैट मीन्स ये दांत कैसा है? ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी उग सकता है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी उग सकता है, ठीक है। तो ये जो दांत है, ये जो टीथ है, ऐसा किस्म का टीथ कहाँ पे मिलेगा? याद करके देख,
एक दांत फिश और एम्फीबियन में बोला था पॉलीफायोडोंट, उसका दांत गिरता है उगता है, गिरता है उगता है, तो उसका ही ना होगा ये सुपरफिशियल अटैचमेंट, आया ना? Yes, sir. तो सेम थिंग Yes, sir. का यहाँ एग्जाम्पल हो जाएगा, फिश एंड एम्फीबिया। सेकेंड टाइप ऑफ जो टीथ का बारे में बताऊंगा बेस्ड ऑन द अटैचमेंट विद एल्वियोलर बोन, उसको बोलेंगे प्लूरोडोंट। इसको बोलेंगे प्लूरोडोंट। टीथ इज पार्शियली अटैच्ड, टीथ इज पार्शियली अटैच्ड। ये कैसा है सर? बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है एक्चुअली। क्या है ये? अगर एल्वियोलर बोन है, दिस पार्ट इज द एल्वियोलर बोन, तो ये दांत सिर्फ एक साइड पे अटैच्ड होगा, देख दोनों साइड पे अटैच नहीं है, ये दांत है, ये एक साइड पे अटैच्ड है। ओके, तो इस किस्म का दांत कहाँ पे मिलेगा? एग्जाम्पल रेप्टाइल्स में मिलेगा, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सब रेप्टाइल्स में नहीं मिलते हैं। एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में प्लूरोडोंट नहीं होते हैं, इसमें कुछ और ही होता है। थर्ड एंड द लास्ट वन, थेकोडोंट। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ा था, एनिमल किंगडम में इसको स्क्वायर अप कर दिया, दैट मीन्स ये थेकोडोंट इन ह्यूमंस में भी होगा। टीथ इज प्रॉपरली अटैच्ड, राइट? टीथ इज प्रॉपरली अटैच्ड मतलब सर, अरे सब चारों तरफ से ये दांत प्रॉपरली अटैच्ड होगा, दैट देखा दिख रहा है? तो ये इसका एग्जांपल थेकोडोंट में क्या हो जाएगा? जो एक्सेप्शन पहले लगाया था क्रोकोडाइल, उसका थेकोडोंट होगा, और ह्यूमंस। क्लियर? क्लियर? Yes, clear. ओके, लास्ट टाइप ऑफ टीथ बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ मतलब क्या है कि कितना प्रकार का दांत रहेगा, कितना प्रकार का दांत रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, वो देख लेते हैं। Sir, one still third one. Which one? Thecodont? Yes, sir, third one. Third one. The way when the teeth is attached from both the ends, you can see this is the alveolar bone, and teeth is attached properly inside the alveolar bone. It is not like partially attached on one side and it is open on the other side. It is totally attached with the alveolar bone. That's called thecodont. Okay, sir. Teeth on the basis of shape. On the basis of shape में हम लोग बस दो किस्म का टीथ देख सकते हैं। पहला जो टीथ है, सबका शेप सेम, ऑल आइडेंटिकल, सबका सेम ऑल आइडेंटिकल शेप, उसको क्या बोलेंगे? होमोडोंट। ऐसा दांत किसमें मिलते हैं? फिश और एम्फीबिया में। और ऑल डिफरेंट शेप, सेकेंड ऑल डिफरेंट शेप, इसको बोलेंगे हेटेरोडोंट। इसको भी हम लोग स्क्वायर अप कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसके एग्जाम्पल में हम लोग आ जाते हैं। एग्जाम्पल मैन। तो ये जो हेटेरोडोंट बोला, ये कितना प्रकार का दांत होता है? पहले ही बोला, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, राइट? देख ले, इंसाइसर,
ऐसा होगा दिखने में। कैनाइन, इसको थोड़ा पीछे जाएंगे, प्री मोलर, मोलर, इंसाइसर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। राइट, देख सबका शेप अलग अलग है, प्री मोलर और मोलर को छोड़ के, है ना? दिख रहा होगा, राइट? Yes. तो ये जो इंसाइसर्स है, ये इंसाइसर्स किसके लिए काम आता है? कटिंग के लिए। कोई भी खाना को अगर कट करना है तो हम लोग फ्रंट टीथ को ही यूज करते हैं, फ्रंट टीथ, ठीक है? और ये सबसे डेवलप्ड होता है, मोस्ट डेवलप्ड होता है इसमें, रैबिट्स में सबसे डेवलप होता है। दूसरा है क्या? कैनाइन्स। कैनाइन्स किसके लिए होता है? ये पॉइंटेड है, दिख रहा है हम लोगों को, पॉइंटेड टीथ है। और ये किस चीज के लिए यूज होता है? टीयरिंग ऑफ फ्लेश। कोई भी चीज ऐसे दांत से ऐसा करके टीयरिंग करने के लिए, फॉर टीयरिंग। कोई भी चीज ऐसे छीलने के लिए, टीयरिंग। सबसे डेवलप्ड होता है ये किसमें? कार्निवोरस में, मोस्ट डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। इसके बाद कौन है? प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स किसका काम के लिए होता है? ग्राइंडिंग के लिए। ब्लंट होता है और ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। और ये सबसे डेवलप होता है, कुछ देर पहले ही मैं बोला था, ब्यूनोडोंट टीथ, जो क्या होता है? ब्लंट टीथ होता है। उसका एग्जांपल में बोला था, ह्यूमन, बोला था, Yes. राइट? तो इसमें सबसे डेवलप किसमें होगा? ह्यूमंस में। एम से होगा मोलर, ये भी ब्लंट टीथ है, ये भी ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है। और ये भी सबसे डेवलप होता है किसमें? ह्यूमंस में। देयरफॉर ह्यूमंस में तुझे क्या क्या किस्म का टीथ मिला बता तो? डाइफायोडोंट मिला? मिला, हाँ या ना? Yes, sir. टू हेटेरोडोंट अभी मिला? देख एग्जांपल में है हेटेरोडोंट। बूनोडोंट मिला? ब्लंट टीथ। Yes. और थेकोडोंट मिला था? तो Yes. what is characteristic of human teeth? Diphyodont, heterodont, bunodont, thecodont. Clear? Yes. और एक चीज सिखा देता हूँ, जिसे कैसे करके डेंटल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ का, अगर मैं पहले मिल्क टीथ का दिखा देता हूँ। दो जॉ है, अपर जॉ, लोअर जॉ, राइट? इसको अपर जॉ कंसीडर कर देते हैं, इसको लोअर जॉ कंसीडर कर लेते हैं। तो एक साइड में अगर अपर जॉ में, दोनों जगह पे क्या होगा? इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, राइट? सेम थिंग ओवर हियर, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, राइट? एक साइड का बोल रहा हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 0 2। यहां पर भी वही 2 1 0 2। तो एक साइड में कितना टीथ मिला? एक साइड में कितना टीथ मिला? अरे गिन के बता, एक साइड में अपर जॉ में कितना मिला? एक साइड में 10 मिला, अपर जॉ में 5. 5 मिला, 5 मिला। तो यहाँ पे अगर 5 है तो इस साइड में भी 5 होगा। तो फिर अपर जॉ में कितना दांत हुआ? 10, राइट?
Yes. लोअर जॉ में एक साइड में कितना मिला? यहाँ पे 5, तो इस साइड में भी 5 मिलेगा। सर डेंटल फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना, समझ में नहीं आया। कौन सा? सर यही वो आप पढ़ रहे हो डेंटल फॉर्मूला। मैं डेंटल फॉर्मूला में क्या मैं तो कंप्लीट ही नहीं किया, क्या सर समझ में नहीं आया? सर अपर के 5 कैसे आए वो समझ में नहीं आ रहा है। तेरा दांत गिन, तक आईना के सामने बैठ, सब क्लियर हो जाएगा। दांत पहले गिन एक साइड का कितना है। तेरा 2 जॉ है ना, ऊपर का जॉ लोअर जॉ दोनों है ना, कितना जॉ है तेरा? कितना जॉ है यहाँ पे? कितना है? 2 सर। 2 जॉ है। तो मैं बोल रहा हूँ एक साइड का बोल रहा हूँ, एक साइड का। एक साइड में, इस साइड में 5 होता है अगर लोअर जॉ में, तो इस साइड में भी तो 5 ही होगा। हाँ सर। तो अगर अपर जॉ में भी वही बोल रहा हूँ, एक साइड में अगर 5 है तो इस साइड में भी 5 ही होगा। हाँ तो मैं तो वही बोला, मैं चाइनीज से हिब्रू में थोड़ी ना बोला। तो अपर जॉ में कितना फीट हुआ टोटल? 5 + 5 कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है 5 + 5 और नीचे भी 10। तो 10 और 10 कितना हुआ मैं तेरा मिल्क टीथ में टोटल 20. हुआ था? तो अभी इस मिल्क टीथ को हम लोग अगर इसको परमानेंट टीथ में तब्दील करें, इसी फॉर्मूला को हम लोगों को तब्दील करना है किसमें? परमानेंट टीथ में। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला में कैसे करके तब्दील कर सकते हैं? ये देखो, परमानेंट टीथ, अपर जॉ लोअर जॉ कर लो पहले। अपर जॉ लोअर जॉ, अपर जॉ का एक साइड, लोअर जॉ का भी एक साइड। इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। यहाँ पर भी वही इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इसका अपर जॉ का इसका फॉर्मूला देखो कैसे बदलता है। 2 1 2 3, नीचे भी 2 1 2 3। तो एक साइड में कितना दांत हुआ? गिन। कितना हुआ दांत? 8। तो अगर इस साइड में 8 है तो इस साइड में भी 8 होगा। तो अपर जॉ में कितना दांत हो गया? 16। यहाँ पर भी सेम थिंग, इस साइड में अगर 8 होता है तो इस साइड में भी 8 होता होगा। तो लोअर जॉ में कितना होगा? 16। तो 16 + 16 कितना हो गया? 32। हुआ था परमानेंट टीथ 32 दांत हुआ था? Yes, sir. हुआ था? Yes, sir. वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है, क्लास 9 में भी शायद ठीक से पढ़ा होगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि तुझे अगर मैं पूछा परमानेंट टीथ में प्रीमोलर कितना एडेड हुआ है, बता तो। आंसर क्या होगा? 8. 8 एडेड हो गया। 8. 8 एडेड हो गया। मोलर कितना एडेड हुआ है? 4. 4. 4. तो 8 + 4 12 है यहाँ पे। 20 से 32 हुआ है, 12, तो 12 का ही डिफरेंस है ना। Yes, sir. राइट, दैट मीन्स तेरा इस टीथ में, परमानेंट टीथ में, ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन टीथ क्या था? डाइफायोडोंट, राइट? Yes. ह्यूमन टीथ क्या था? डाइफायोडोंट। तो लेकिन यहाँ पे Yes, sir. 2 टीथ ऐसा है जो मोनोफायोडोंट है। वो क्या है बोल तो? एक ही बार उगा है।
अपना जीवन काल में एक ही बार आया है, देख के बता तो कौन कौन सा है? Incisors and canines. इंसेसर पहले नहीं था, अभी हुआ है, देख तो। इंसेसर और कैनाइन दोनों पहले से ही तो 2 और 1 करके था। प्रीमोलर। प्रीमोलर नहीं था, Premolar. और ये मोलर का जो लास्ट मोलर जिसको विजडम टीथ बोलते हैं वो 2 से 3 हुआ है, राइट? यस सर। Yes, sir. तो ये मोनोफॉइडेंट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। पहले इन ह्यूमन टीथ, ये बोल सकते हैं इन ह्यूमन टीथ मोनोफायोडोंट कौन सा होगा? बोल। प्रीमोलर Premolar And- and last molar. एंड वन मोलर। लास्ट मोलर को क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। कब उगता है? पता है? जब तेरा बुद्धि आएगा। अभी तक आया है विजडम टीथ तेरा? आया है? नहीं आया ना, तो मतलब बुद्धि नहीं नहीं। आया। हाँ, तो बुद्धि नहीं है तेरा, निर्बुद्धि है। समझ में आया? Yes, क्लियर? sir. तो यही था टीथ के बारे में। कल टीथ का स्ट्रक्चर पढ़ के बैठना। किसी को कुछ पर्सनल डाउट था अभी पूछ सकते हो। No, sir. Clear now. ठीक है, क्लास हो गया। Excuse me, sir.